Hello everyone, welcome to today's session in Concept. Today we will be talking about the various type of risk that are involved in mutual fund. But before starting the video, if you are new here, you can go in the description. There is a link below. With the help of that, you can download and install Concept Wealth application. After successful registration, you will get some videos there that will help you out in your investment. Okay, you will be get to know about various type of investment ideas and tools, right? And at any time, if you guys are having any kinds of doubts or query, so you can contact us on this number and we will be there to sort your queries out. Okay, now let's start today's video, that is the various type of risk that are included in mutual fund. So first of all, when we are talking about mutual fund, so mutual fund, you can say it is a pool in which various investors, they invest their money. Okay, and after that, this money is being allocated to various assets, okay, into various, you can say various mutual funds, type of mutual funds, for example, equity, debt, okay, and then from there is a expectations of returns, ठीक है, कि market में हमें return मिलेगा, right? Now, if you are aiming for some return, so obviously there are some risk included in it, ठीक है. Now today we will be gonna learning that कि what are those risk, ठीक है. तो चलते हैं आगे, okay. Now there are so many types of risk. For example, right now I can see 6 type of risk there. Okay, first example, the market risk. So obviously, if we are investing in mutual funds in hope for a good returns, so if the market will go up, so I'll get a return. But if the market will go against my sentiments at that time, I will be having a loss. Simple. So that is your market risk. Okay. Then there is a credit risk. It means if I am investing in debt funds, ठीक है, मैं डेट फंड्स में कर रहा हूं, आप कमर्शियल पेपर्स में कर रहे हो, बॉन्ड्स में कर रहे हो, एट द टाइम व्हाट इफ इन विच इज म्यूचुअल फंड जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इफ दे विल बी इन्वेस्टिंग योर मनी इन अ लो क्वालिटी एसेट, अगर लो क्वालिटी एसेट में आपका इन्वेस्ट कर देंगे पैसा, तो वहां पे भी देयर आर चांसेस दैट you will be in loss, right? So that is one type of the risk involved here. Then there is a interest rate risk. So at any point of time, if the interest rate will increase, so at that time you will also be having some risk in your portfolio, या फिर जितना आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना आपको नहीं मिलेगा, ठीक है. Okay, then we have the liquidity risk, right? Liquidity, why? Because the liquidity can change, the season can change, the mindset of the people can change, they can lose interest in one sector to another sector, and that is when कम लोग आएंगे अगर किसी स्कीम में, so that will cause a liquidity risk in that particular mutual fund, ठीक है. इन्फ्लेशन रिस्क भी होगा वहां पे, क्योंकि इफ देयर विल बी इन्फ्लेशन, राइट, सो देन द प्राइसेस, जो आपका प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड का प्राइस, राइट, बट जो आपका फॉर एग्जांपल अगर आपको रिटर्न 15% में मिल रहा है आज, ठीक है, एंड नेक्स्ट ईयर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 15% का रिटर्न, बट एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो गया है, तो जो वैल्यू है ऑफ योर रिटर्न्स, ऑफ योर प्रॉफिट, दैट विल आल्सो डिक्रीज डाउन, वो कहीं ना कहीं एज कंपैरिजन टू द इन्फ्लेशन, एंड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन आपका वो रिटर्न जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है. एंड देन वी हैव द करेंसी रिस्क. सो करेंसी रिस्क इज नथिंग बट द एक्सचेंज रेट का जो रिस्क होता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल वी आर कंपेयरिंग आवर करेंसी टू द डॉलर्स पे अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं, okay, and I am having a profit, but if this currency exchange rate will increase, at that time I will also be having a risk, because अगर मैं किसी दूसरे मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं और मेरे को एक्सचेंज करना है अपना पैसा, at that time I will be having थोड़ा सा अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा, मार्जिन कम हो जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आई विल बी हैविंग लॉस, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द रिस्क दैट आर इंक्लूडेड, ओके, बट apart from them there are some more risk that is called the systematic versus unsystematic. Now systematic risk कौन से होते हैं? That affects the entire market, ठीक है. तो for example if there will be recession, so it will affect the entire market, okay, either it is options, either it is equities, either mutual fund, okay, or you can say anything, ठीक है. So it will impact the overall market. The unsystematic risk, they affect the specific sector. For example, company, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सेक्टर को करेंगी, हेल्थ केयर को कर दिया, मैन्युफैक्चरर को कर दिया, ठीक है, मैन्युफैक्चरर बीएफएसआई बैंकिंग को कर रही है, ठीक है. एक ऐसी स्कीम आई जिससे सिर्फ बैंकिंग को नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है. दैट इज योर अनसिस्टमैटिक, ठीक है. और सिस्टमैटिक कौन सा होगा? दैट विल इंपैक्ट लॉस ऑन ओवरऑल मार्केट, ठीक है. सो दीज आर टू टाइप ऑफ द रिस्क दैट आर there,
ओके। देन वी हैव द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? तो पहली चीज, हायर पोटेंशियल रिटर्न्स कम विद हायर रिस्क, ओके। इफ आई गिव यू एग्जांपल, जैसे इक्विटी, इक्विटी को सब पता है कि इट गिव्स गुड प्रॉफिट, अच्छा रिटर्न यहां पे मिलता है। क्यों? बिकॉज इन इक्विटी हम उन एग्रेसिव टाइप्स ऑफ फंड्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट स्मॉल कैप्स, तो स्मॉल कैप्स भी अच्छा रिटर्न देते हैं। क्यों? ठीक है, बिकॉज यहां पे वी गो विद दोस टाइप ऑफ स्टॉक्स जो काफी अग्रेसिव इन नेचर में, ठीक है। क्योंकि बिकॉज वी आर सर्चिंग फॉर गुड रिटर्न्स इन कंपैरिजन ऑफ द मार्केट, हमें मार्केट से ज्यादा रिसर्च वो रिटर्न चाहिए, ठीक है। बट अगर यहां पे हमें उतना अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो ऑब्वियसली देयर विल बी रिस्क इंक्लूड, बिकॉज अगर इन केस इफ द मार्केट विल गो अगेंस्ट माय सेंटिमेंट्स एट दैट टाइम, आई विल बी हैविंग द सेम काइंड ऑफ रिस्क। तो जहां जितना ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, योर लॉस और रिस्क विल बी सेम, ठीक है, वहां पे ज्यादा रिस्क होगा। सो अंडरस्टैंडिंग रिस्क टॉलरेंस इज द की बिफोर इन्वेस्टिंग। सो यू शुड ऑलवेज बी एनालाइजिंग कि मेरे को कितना रिस्क मैं उठा सकता हूं, मेरी एज क्या है, व्हाट विल बी माय रिस्क प्रोफाइल, व्हाट आर माय इनकम सोर्सेस, कि अगर मेरे को रिस्क होता है तो क्या मैं उसको कंपनसेट कर पाऊंगा अपनी इनकम से। इफ आई एम हैविंग दैट मच ऑफ टाइम, क्या मेरे ऊपर इतनी लाइबिलिटी है। सो दैट इज द थिंग यू शुड बी केयरफुल अबाउट व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर इन्वेस्टमेंट एज वेल, ठीक है। तो अपना रिस्क प्रोफाइल शुड बी क्लियर, ओके। Then we have the mitigating risk. How can we mitigate the risk? How can we less the risk? कैसे कम कर सकते हैं? What are the precautions? ठीक है, in mutual funds. So the first one is the diversification. Okay, तो diversification we have made so many videos on diversification. अगर आपने नहीं देखी है, please go and check them out. ठीक है, तो diversification. Then we have the asset allocation. So you can make some strategies. For example, you are investing 20% in equity, then 80% in debt funds. ठीक है, तो इस टाइप से आप अपना एसेट एलोकेशन कर सकते हो, ठीक है। सो दैट आपको एक थोड़ा सा 20% का आप रिस्क ले रहे हो पर वहां पर बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, 80% आप लेस रिस्क ले रहे हो और मॉडरेट प्रॉफिट के साथ जा रहे हो। सो एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज शुड बी देयर, ठीक है। देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या फायदा होगा? यू विल बी गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ कंपाउंडेशन। सो योर प्रॉफिट विल बी कंपाउंडेड अगेन एंड अगेन इन योर प्रिंसिपल अमाउंट, एंड एट द एंड ऑफ योर tenure you will be getting good returns, ठीक है। and then last, choosing funds with strong track record, ठीक है। तो आपको वो म्यूचुअल फंड चूज करना है which will be having a strong track record, ठीक है, टेक्निकल बेसिस पे, on the basis of fundamental as well, and along with that चूज अ गुड फंड मैनेजर एज वेल, ठीक है। तो अच्छा फंड मैनेजर भी आपको यहां पे चूज करना चाहिए। फंड मैनेजर का क्या रहेगा कि हाउ मच कैपेबिलिटी ही हैज, कितना इन्वेस्ट करा है, हाउ मच प्रॉफिट इज गेटिंग, ठीक है, ज्यादा किसी एक तरफ इंक्लाइन तो नहीं है इक्विटी में या फिर डेट में, ठीक है। सो ये भी चीज आपको देखनी है। सो दिस इज ऑल द थिंग्स दैट यू कैन डू टू लेस योर रिस्क, टू मिटिगेट योर रिस्क, ओके। तो आई होप गाइज आपको पता चला होगा कि आज की वीडियो में कि व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन द म्यूचुअल फंड्स एंड हाउ यू कैन मिटिगेट देम एज वेल। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई, यू कैन लाइक इट, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, you can put your views in the comment section. If you are new here, you can subscribe the channel as well. Thank you so much guys. This is your trainer Ankit Singh Rawat. Have a good day.